sales manager, a business development person, you need to excel on your telecalling skills. You need to know how to call a customer. You need to know how to have a confident conversation with the customer so that you can gain customers' trust and rapport with them. Let's start our training program of today. We are going to cover in the next 2 hours. We'll give you a very quick refresher on what we did the last session, and then we will also look at various types of resistance. So when we talk to customers, customers resist us. When we try to sell something to customer, they come up with a lot of different kind of resistance. I'm busy. Call me later. Your price is too high. You know, they try to move away from the deal, or they try to procrastinate the deal. So we are going to learn what are those various type of resistance, the common reaction to those resistance, which we should avoid. What are the objection handling techniques by which we can gain customers' trust and handle all the objections in a very positive way? And then we'll see a couple of advanced closing techniques also. Okay, so last session we had done, we had seen the structure of sales conversation. There are 5 stages which all of you should know if you are in sales. The first is preliminary stage. This is where you get your customer's attention. This is where you introduce yourself to the customer and how you start the conversation with the customer. Very important. Once the once you have got the attention of the customer, then you need to investigate customers' requirements. So second stage, investigating needs. This is where you ask a lot of questions to the customer, understand their problems, understand their aspirations, understand their needs. So asking a lot of questions is important in the second stage. Convincing. Once we understand the problem statement of the customer, their requirement, their needs, we convince them. How we convince them is by translating the features into benefits. If you are selling a car or a two-wheeler or a four-wheeler, they have features, and you need to translate those features into benefits for the customers. That's what customer wants to hear. And then price presentation, very much important. When you're presenting the price to the customer should still be focused on the benefits more and less on the price. Of course, price is important. Negotiation might happen, but you need to know how to present price to the customer. And at last, most important is closing or conclusion. When you ask for the order from the customer, how you ask for the order is very much important. A lot of salespeople get stuck in the closing stage. They investigate, they convince, they give the price to the customer, and the customer, procrastinates sometimes. I will have to think about it. The price is too high. I will compare about it. So we will learn today how to handle those situations. So these are 5 stages which all of you should know and prepare accordingly your conversation with the customer. Last time we also understood what is phone professionalism and why it is important. Because if you are speaking with the customer over the phone, customer cannot see you. They can only hear you. They can feel you, your voice. And so you should ask this question to yourself. How do you want your customer to perceive you as? What should the customer think about you? What is his perception? The customer should think you of as someone who is powerful, someone they can trust, someone who sounds very confident, knows about the product, someone who is very professional, has been in this business for a lot of time, is an experienced person, and at the same time is friendly also to the customer.
All of you should think about this. How is your customer perceiving you? Does your customer perceive you as trustworthy? Do they see you as someone who can trust? Do they see you as someone who is professional, someone who is friendly? And so the next important question is, what is required to be perceived this way? Your tone, your pace, your clarity, and your energy. These are four most important aspects when you speak with the customer, especially over the phone. And we also understood elevator pitch. कैसे बनाते हैं elevator pitch? So, for example, we had seen how you should create your own elevator pitch to fix appointments. Customer के साथ appointment कैसे fix करना चाहिए, right? तो उसके लिए 5 important steps. There are 5 important steps. First, introduction. How to introduce yourself to the customer. So when you are calling the customer, so what you say is, "Good morning, sir. Yeah, good morning, Vijay, sir. I'm calling from Maruti dealership. I'm calling from Mahindra dealership. या आपके dealership का जो भी नाम है. And my name is G. So, good morning, Vijay. Good morning, sir. I'm calling from Maruti dealership. मेरा नाम जीत है. Most probably customer का reaction होगा, yes जी, बोलो जी. Then you need to get his attention. But do you have 2 minutes? Do you have a minute or do you have few minutes? I would like to schedule an appointment with you. सर आपके पास 2 मिनट का समय होगा, मैं आपके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहूंगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहूंगा, या अगर उसको साइट पे बुलाना है या डीलरशिप पे बुलाना है तो उसके लिए बात करेंगे हम लोग, आपके साथ मीटिंग फिक्स करनी है। तो जब आप कस्टमर को बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मारुति डीलरशिप, माय नेम इज जीत, जब आप अपना नाम लास्ट में बताते हैं, chances are is that the customer will remember your name. Introduction. Mostly sales people जब introduce करते हैं, good morning sir, my name is Jeet and I am calling from Maruti dealership. But अगर आप उसको reverse कर देंगे, when you say good morning sir, I am calling from Maruti dealership and my name is Jeet, customer will remember your name, and that is what we want. Customers should remember your name. Then get attention. Sir, आपके पास 2 मिनट का समय है. I would like to schedule an appointment with you. The most common reaction to this second step is why. क्यों मीटिंग चाहिए आपको, मेरे से क्यों मिलना है, अपॉइंटमेंट क्यों फिक्स करना है. और जब कस्टमर ये पूछता है क्यों, why, what is it about, you tell them about the successful implementations. कैसे आप दूसरे कस्टमर्स को हेल्प करते हैं. Suppose if we are calling from Maruti dealership, tell them that we have sold 15 lakh cars to our happy customers as per their requirement, and all these cars were, fuel efficient, low maintenance cost, and they had higher resale value. अगर आप लोग रियल एस्टेट से हैं तो अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए. सर हमने अभी तक 2000 लोगों को फ्लैट सेल किया है या घर दिया, हमने 2000 हैप्पी कस्टमर्स को उनके मनपसंद घर दिए हैं जो कि उनके बजट में भी फिट होता है और उनकी बाकी रिक्वायरमेंट भी फिट पूरी करता है. क्या इंपॉर्टेंट था, क्या यूएसपी था, कैसे आपने बाकी कस्टमर्स को हेल्प किया है, उसके बेनिफिट्स क्या रहे हैं, वो आपको शेयर करना है. एंड देन गिव द बेनिफिट फॉर टू द कस्टमर. So I would like to meet you. I would like you to meet our senior sales expert, or I would like you to, I would like to meet with you and understand your requirements and see if you can also get the same benefits. तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि क्या आपको भी सेम बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या आपको भी मैं इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ. एंड देन आस्क कंफर्मेशन क्वेश्चन. क्या आप कल सुबह मिल सकते हैं, क्या हम कल सुबह मीटिंग कर सकते हैं, क्या कल सुबह आप हमारे साइट आ सकते हैं 11 बजे 12 बजे संडे को. सर अगर आप रियल एस्टेट वाले हैं तो सैटरडे संडे का टाइम दे सकते हैं, तो क्या हम कल सुबह संडे को 12 बजे मिल सकते हैं. ये एक एलिवेटर पिच है दोस्तों और ये काम करता है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, बहुत ब्रीफ. गुड मॉर्निंग सर,
मैं XYZ रियल एस्टेट कंपनी से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जीत है। हाँ जी, क्या बात है, क्यों फोन किया? सर आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आई वुड लाइक टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद यू। वाई डू यू वांट टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद मी? So we have sold more than 15 lakh cars. We have sold more than 2,000 flats to our happy customers as per their requirement. And all these flats were very cost effective and low budget and low maintenance and high resale value. All these cars were. जो भी benefits आपने अपने existing customers को दिए उसके बारे में बताएं. Give benefit and मैं आपसे मिलना चाहूँगा और आपकी requirement समझना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि आपको भी same benefits मिलते हैं. तो क्या हम कल सुबह 11 बजे मिल सकते हैं? कस्टमर से मत पूछना कि कब मिलना है, कस्टमर को आपको टाइम देना है। डोंट आस्क कस्टमर कि आपके पास कब टाइम होगा। यू हैव टू गिव टाइम टू द कस्टमर, यू हैव टू गिव डेट टू द कस्टमर। क्या हम कल, क्या हम परसों मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मिल सकते हैं 11 बजे, 12 बजे? लेट द कस्टमर से ही इज बिजी एंड गिव यू अनदर टाइम स्लॉट। मेक सेंस? ओके, ये हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था। अब जब हम लोग कई बार कस्टमर्स को फोन करते हैं, हम लोग पूछते हैं कि सर क्या आपके पास 2 मिनट का समय है? तो कस्टमर हाँ नहीं बोलता है हमेशा, राइट? कस्टमर रेजिस्टेंस शो करता है या फिर अलग अलग रिएक्शन देता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। हम लोग देखते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आपने कभी किसी कस्टमर को पूछा सर वी हैव 2 मिनट्स, कई बार कस्टमर बोलता है नहीं आई एम टू बिजी, आई डोंट हैव टाइम। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, या तो कस्टमर फोन डिस्कनेक्ट कर देगा और एल्स यूजर ठीक है सर मैं बाद में फोन करूंगा। बट देयर इज अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दैट सिचुएशन। इफ द कस्टमर सेज आई एम टू बिजी, टेल हिम आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझ सकता हूं आप बिजी हैं एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आई हैव कॉल्ड यू टू नो द सूटेबल मोमेंट फॉर दिस कॉल। मैं समझ सकता हूँ आप काफी बिजी हैं और इसीलिए मैंने ये फोन किया है ताकि मैं आपसे आप एक बेटर टाइम समझ पाऊंगा, आप कितने बजे अवेलेबल रहेंगे। तो क्या आप कल सुबह 11 बजे अवेलेबल हैं? दैट्स इट। यू नीड टू कंट्रोल द कन्वर्सेशन, नॉट द कस्टमर। सो अगर कस्टमर ने आपको बोला आई एम टू बिजी, कस्टमर को बोलो सर मैं समझ सकता हूँ आप काफी बिजी हैं और इसीलिए ही मैंने आपको फोन किया है आपसे टाइम लेने के लिए। कब हम बात कर सकते हैं? क्या कल सुबह आप 11 बजे अवेलेबल हैं? बेटर वे टू हैंडल दिस रिएक्शन, राइट? कस्टमर कई बार बोलता है आई विल कॉल यू बैक, लेकिन वो कभी कॉल आता नहीं है। Many time it happens. You call the customer, customer says, I will call you back. Customer is not going to call you back. So what do we do? Here is the reaction. That's nice. I appreciate that. When can I expect your call? A better way to handle this situation, right? When the customer says, I will call you back, you say something like this. अरे वाह बहुत थैंक यू सर, आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपका कॉल कब कितने बजे एक्सपेक्ट करूं? उसके बाद कस्टमर बताएगा आपको कि मैं आपको शाम को करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा या 2 घंटे बाद करूंगा। दैट्स नाइस। अरे वाह बहुत अच्छे से, मैं अवेलेबल हूँ उतने बजे। ओके दैट्स नाइस सर, आई विल ट्राई माई सेल्फ ऑल्सो। मतलब आपके कस्टमर को ये बता दें अगर उसका कॉल नहीं आएगा तो आप फिर से कॉल करने वाले हैं, वेरी पोलाइट वे। आई विल कॉल यू बैक, दैट्स नाइस, आई अप्रिशिएट दैट, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट योर कॉल? Oh, yeah, I'll call you tomorrow. Oh, that's good to hear, sir. I will try myself as well. तो कस्टमर को भी पता है कि आप उसने कॉल नहीं किया तो आप कॉल करने वाले। He will be expecting your call. And that is what we want. Customer should expect our call. Sometimes customer says, आप कई बार फोन करते हैं, कैसे बोलते हैं मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेज दो मेल पे। And usually what we say is okay, I'll send it across to you. When the customer says, send me some info first, usually the salesperson says, I will send this across to you. But there is a better way to handle this. Sure, I can do that. So you're interested. Customer will say yes or no. If the customer says yes,
That's nice to hear. What is that interesting? What makes this interesting to you? And then you wait for the customer's response. Let the customer tell why this is interesting for him or her. And then again, you stress the point, and that's one of the reasons why an appointment is necessary. If the customer says no, what is it you were expecting to become interested? Then again, wait for the customer's response. And when the customer gives you the response, reasons, tell him, and that's exactly the reason why I wanted to fix an appointment with you, sir. Sometimes customer says, I'm not interested. मुझे interest नहीं है. What do? Usually salespeople disconnect the call. डिस्कनेक्ट करने से अच्छा है कि आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल करें. कस्टमर बोले मैं समझ सकता हूं आपको, क्योंकि हमने अभी तक इसके बेनिफिट्स डिस्कस ही नहीं किए हैं, एंड इसीलिए मैं आपसे मिला जाता हूं. व्हाट अबाउट टुमारो 11 AM? Many times customer will tell you I'm not interested, and this is how you have to handle this situation. कई बार कस्टमर बोलते हैं कि 6 महीने बाद कॉल करो, 1 महीने बाद कॉल करना, 2 दिन बाद कॉल करना, और हम लोग बोलते थे हाँ ठीक है सर, मैं आपको 2 दिन बाद 6 महीने बाद कॉल करूंगा. A better way to handle this is sure I can do that. बिल्कुल सर मैं आपको कॉल करता हूँ, लेकिन 6 महीने में क्या चेंज हो जाएगा? What will make it more interesting after 6 months? You have to be very clever in handling all these reactions from the customer when you ask for their permission. Do you have 2 minutes? When you ask the customer, do you have 2 minutes? Customer will say, I'm not interested. I'm too busy. Send me some information. Call me after 6 months. ये सारी चीज होने वाली है, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सारे सिचुएशन हैंडल करने हैं. Better if you are confident enough, you will know how to handle the situation. So let's first understand what are various kind of resistance. There are three kind of resistance. Brush off, that means customer says that they don't want, उनको नहीं चाहिए हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज, लेकिन उनके पास कोई रीजन भी नहीं होता है हमारे साथ काम करने नहीं करने का. उनको शायद ये भी पता नहीं होता कि हमारे साथ काम करने से, हमारे प्रोडक्ट सर्विस लेने से उनका क्या बेनिफिट होने वाला है. सेकंड रेजिस्टेंस होता है प्रीटेक्स्ट. प्रीटेक्स्ट वो है जहां पे कस्टमर आपको ना नहीं बोलना चाहता. जब आप कस्टमर से बात करते हैं अपने सेल्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए, कस्टमर को आपसे बात नहीं करनी होती है, बट वो प्रिटेंड करता है जैसे कि उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगे. द फैक्ट इज द कस्टमर डज नॉट वांट योर प्रोडक्ट, they do not want to spend any time with you, but they pretend as if they want your product or services. And the third kind of resistance is objection. Now, objections are valid reasons, legitimate reasons for the customer not to work with you. This can be because of price, this can be because of trust issue, this can be because of timing. They don't think that this is the right time to work with you. Need, they don't, customer does not see that they feel that they need this right now, or price may be high as per them. These are valid reasons, objections.
And as a salesperson, all of you should know how to handle all these, kind of resistance. कई बार हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, बिगर हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने समझे, या व्हेन वी कॉल द कस्टमर, व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अंडरस्टैंड द कस्टमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर या रिक्वायरमेंट, कस्टमर पहले ही बोल देता है कि मुझे नहीं चाहिए. दे डोंट नो how they are going to get benefit out of our product services. Brush off. Pretext. Pretext मतलब कस्टमर प्रिटेंड करते हैं, हाँ हाँ अरे बहुत अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, आप मुझे ईमेल भेज दो, आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो, ठीक है, अच्छा लग रहा है, मैं सोच के आपको बताता हूँ. प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि वो ले लेगा, लेकिन नहीं लेने वाला, वो आपको ना नहीं बोलना चाहता फोन पे या फेस टू फेस. एन ऑब्जेक्शन रियल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर नहीं काम कर सकता आपके साथ या आपके प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता. बट सेल्स में सेल्स पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल, while handling resistance objections. यूजुअली सेल्स के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम देखते हैं. कॉमन रिएक्शंस टू रेजिस्टेंस. Sales people get emotional because they like their product, they like their service, they are very emotional. No, that is not true, sir. कस्टमर ने बोला नहीं आपका ये प्रोडक्ट में ये नहीं है, नहीं ऐसे बात नहीं है सर. कस्टमर ने जहां बोला आपका प्राइस ज्यादा है, यू इमीडिएटली स्टार्ट डिफेंडिंग योरसेल्फ. सर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा है. वी डोंट हैव टू डिफेंड. डोंट ब्लेम समवन एल्स. वो मेरी गलती नहीं है, लॉजिस्टिक की गलती है, मेरी गलती नहीं है, वो वेबसाइट पे गलत इन्फॉर्मेशन आ गया था, या ब्राउचर में गलती, अगर कई बार होता है रियल एस्टेट में ब्राउचर में कुछ गलत नंबर छप गए, तो हमने बोल दिया सर मैंने नहीं किया, वो मार्केटिंग वाले की गलती है. नो, इट इज योर कंपनी, यू आर प्रेजेंटिंग योर कंपनी, यू डोंट ब्लेम समवन एल्स. You don't get angry at your customer. No, that's not true, sir. Never repeat the objection. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने बोला कि भाई आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है. अच्छा तो सर आपको लगता है मेरा प्राइस बहुत ज़्यादा है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. इसी रिपीट करने से क्या होता है, 3 बार प्राइस बढ़ जाता है, और फिर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा या डिपेंड करना पड़ेगा क्यों आपका प्राइस ज़्यादा है. 3 बार. डोंट इग्नोर द ऑब्जेक्शन. कस्टमर ऑब्जेक्शन उठाता है, आपका प्राइस ज़्यादा है या ये ऑप्शन पसंद नहीं है, सर इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है. कस्टमर के लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, आपको लग रहा है छोटी प्रॉब्लम है. एंड दैट इज व्हाई सेल्स पीपल समटाइम्स इग्नोर द ऑब्जेक्शन व्हिच इज नॉट गुड एट ऑल. कई बार छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना देते हैं. कस्टमर सेज इट इज 10% मोर देन द कॉम्पिटिशन, या ये 2 लाख रुपए ज़्यादा है, या ये 50,000 रुपये ज़्यादा है, या ये 10,000 रुपये ज़्यादा है बाजू वाले से, दूसरे प्रोजेक्ट से. सर ये सिर्फ 50,000 ही तो ज़्यादा है. तो सिर्फ 50,000 नहीं है, 50,000 इज अ बिग अमाउंट फॉर द कस्टमर. एंड नेवर अटैक द अदर पर्सन. कस्टमर को कभी मत बोलो सर आपने मुझे गलत समझ लिया, यू मिसअंडरस्टूड मी, यू मिसअंडरस्टूड द पॉइंट. कस्टमर सही है, उसको समझाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, उसको लॉजिकली समझाना पड़ेगा, आपको प्यार से समझाना पड़ेगा उसको. नेवर से और अटैक द कस्टमर्स, डोंट टेल देम दैट यू मिसअंडरस्टूड मी. एंड ये सारे कॉमन रिएक्शंस हैं रेजिस्टेंस के. बहुत सारे टाइम सेल्स में सेल्स पीपल रिएक्ट इन दिस वे. They get emotional, they defend very immediately, they blame someone else, they get angry, they repeat the objection, they ignore the objection, they attack the other person. If you are doing this, stop doing this immediately. So what you have to do is,
Need to know how to handle objections, pretext, brush ups. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्री टेक्स्ट को कैसे हैंडल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्री टेक्स्ट मतलब जब कस्टमर प्रिटेंड करता है कि उसको आपका प्रोडक्ट चाहिए या पसंद आया है, दे डोंट वांट योर प्रोडक्ट, दे आर स्टिल प्रिटेंडिंग एज इफ दे वांट योर प्रोडक्ट। Now, pretext is a misleading statement used to stall or distract you. Many times, customer ऐसे बोलते हैं, sounds good, I'll think about it and contact you later. मैं इसके बारे में सोचता हूँ और आपको कॉल बैक करता हूँ। वो कॉल कभी आता नहीं है लेटर। So what do? Usually, when the customer says, अच्छा लग रहा है, मैं सोच आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है सर। What does the salesperson say? Okay, ठीक है सर, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा और I'll wait for your email. But customer तो pretend कर रहा था, वो वापस नहीं आने वाला है। So what is a better way of handling this situation is, you say sounds good. Can you explain what you like about it? Customer says looks good, I will get back to you. You say it looks good, आपको अच्छा लग रहा है, आपने जस्ट कहा आपको अच्छा लगा, आपको इसमें क्या अच्छा लगा सर? If the customer is not pretending, if he really likes a product, he will give you the right reasons why he likes your product or service. अगर उसको आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो वो कुछ और ऑब्जेक्शन उठाएगा, और वही हमको पता करना है कि रियल ऑब्जेक्शन क्या है। We want to unmask the real objection. So you need to be very clever in uncovering or unmasking the customer. Another example, could you give me a call in the second half of the year? आप मुझे 2 महीने बाद कॉल करिए, आप मुझे 3 महीने बाद कॉल करिए, आप मुझे 6 महीने बाद कॉल करिए। कस्टमर को आपसे बात ही नहीं करनी है, लेकिन कई बार हो जाता है, आप मुझे 6 महीने बाद करो या नेक्स्ट ईयर कॉल करो या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कॉल करो। वो कस्टमर का नंबर सेम होगा या नहीं वो भी पता नहीं। सो हाउ डू यू हैंडल दिस? यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। श्योर, नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल आपको मैं फोन करता हूँ, बट व्हाट डू यू थिंक मेक्स इट इंटरेस्टिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर फॉर यू? 3 महीने बाद ऐसा क्या होगा कि आप इसे लेने के लिए रेडी हो जाएंगे? Another example is, thanks for the information, I will take a closer look at it soon. आपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन शेयर किया, आपने उसे कॉल बैक किया, कस्टमर बोलते हाँ थैंक यू, मुझे आपका मेल मिल गया है, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ और फिर आपको कांटेक्ट करता हूँ, एंड वो कभी कॉल बैक नहीं आता। सो व्हाट डू? यू नीड टू बी वेरी क्लेवर। हाउ डू यू लाइक इट एट दिस मोमेंट? आपको ये अभी कैसा लगता है? अभी मुझे अच्छा लगता है या अभी तो मैंने देखा ही नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। हम लोग फोन पे कस्टमर से बात कर रहे हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत बार कॉल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दैट इज व्हाई वी नीड टू बी वेरी क्लेवर इन हैंडलिंग प्रीटेक्स्ट। So these are few examples how you should handle pretext. Brush off. How do you handle brush offs? Brush offs जो मैंने आपको बताया कि आपने कस्टमर को फोन किया, बताया आपकी क्या प्रोडक्ट सर्विस है, कस्टमर ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मगर बिगर ये जाने कि भाई आपके प्रोडक्ट लेने से क्या फायदा होगा, कस्टमर पहले ही बोल देते हैं मुझे नहीं चाहिए। उसको तो पता भी नहीं है आप क्या बेचते हैं, उसको पता भी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट हो रहा है। सिंपल, नहीं चाहिए। एक ये भी रीजन होता है, कस्टमर कई बार बोलते हैं वी ऑलरेडी वर्क विद पार्टनर्स, या मेरे पास ऑलरेडी दूसरे वेंडर्स है, मैं दूसरे वेंडर्स के साथ काम करता हूँ।
बहुत सारे वेंडर्स है और नया वेंडर नहीं चाहिए. So you say something like this. I understand that. It seems that you are aware of the benefits of these kind of products. And that makes you the right person to compare what we can do better. मान लीजिए आप ऑडी के शोरूम में काम कर रहे हैं और किसी कस्टमर को आपने फोन किया, कस्टमर ने बोला कि भाई मैं ऑलरेडी मर्सिडीज में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब बजट तो है उसके पास और उसको बेनिफिट भी पता है कि इस टाइप की कार लेने में क्या फायदा होने वाला है. कि आप ये नहीं बोल सकते अच्छा ठीक है सर नहीं ऑडी और अच्छी है, नहीं ऐसे नहीं बोल देंगे. आई अंडरस्टैंड सर. इसका मतलब यू आर द बेस्ट पर्सन टू कंपेयर बोथ द प्रोडक्ट्स एंड सी व्हाट वी कैन डू बेटर, या ऑडी में क्या चीज आपको अच्छी मिल सकती है. Great, I'm happy to hear that. This means you are very able to compare both the cars, Audi and Mercedes. When can I meet you? When can you come to our agency? Customer says, I'm not interested. Show them a lot of empathy. ब्रश ऑफ को अगर हैंडल करना है तो आपको कस्टमर्स को अपने इमोशंस, अपनी ट्रू फीलिंग्स बतानी पड़ेगी, एम्पैथाइज करना पड़ेगा, कस्टमर को बताना पड़ेगा मैं आपको समझता हूं, आई अंडरस्टैंड यू सर. एंड फिर उसे हैंडल करना है. हैंडलिंग ब्रश ऑफ, showing a lot of empathy so that you can find out what the real problem is to handle that situation. And many salespeople find it very difficult to handle, resistance and objections. And so let us take a look at different objection handling techniques also. अभी आपने ये देखा था व्हाट इज ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन इज द रियल और वैलिड reason for the customer not to work with us. It can be price, need, trust, time. अगर इनमें से कोई रीजन है तो वो रियल हो सकता है. किस तरीके से हैंडल करना है तो अलग अलग टेक्निक्स है उसमें. मैं आप लोग को अभी वो टेक्निक सिखाने वाला हूँ. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे वेरी क्लोज अटेंशन एंड मेक नोट्स. ये टेक्निक्स कैसे यूज करनी है. The very first technique is listen and stop talking. Be silent. ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है. जब कस्टमर ऑब्जेक्शन रेज करता है, टेक अ स्टेप बैक, लुक एट द कस्टमर एज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एंड बी क्वाइट. कुछ मत बोलिए. Most probably the customer will start giving you more information about his point of view. And that is what we want. कई बार जब कस्टमर ऑब्जेक्शन रेज करता है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है. जस्ट लिसन एक्टिवली टू द कस्टमर, स्टॉप टॉकिंग, लुक एट द कस्टमर एज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. And most probably the customer will start giving you more information about his point of view. That is what we want. This also gives you valuable information about the objection. And it also gives you time to prepare for a good response. And at the same time, you will be able to build rapport with the customer. Very much important. Second objection handling technique is raise the objection yourself.
ये टेक्निक का नाम है। इसके पहले कि कस्टमर ऑब्जेक्शन रेज करे, आप खुद ही वो ऑब्जेक्शन रेज करें। रेज द ऑब्जेक्शन योरसेल्फ। ये टेक्निक मोस्टली तब काम आती है या जब कोई कॉमन ऑब्जेक्शन होता है। So if if many of your customers have the same objection, maybe delivery of the flat, delivery of the car, or or price ज़्यादा है, सेम ऑब्जेक्शन है, तब ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। रेज द ऑब्जेक्शन योरसेल्फ। ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? जब आप कस्टमर से बात करें, वन ऑब्जेक्शन कैन बी delivery time, one objection can be quality, another objection can be price, your price is high. This is an objection. And so the chances are that the customer you're talking to now will come up with the same objection somewhere during the conversation. And so you should know, how should I, handle this objection. So you should be prepared. So if it's a common objection, raise it yourself first. For example, many people think this is expensive, and that's why they ignore this solution. So if you're selling a car, many people think this model is expensive and they ignore this version. However, if they take a closer look at it, they would find, in fact, it is going to save them more money. And that is because when you give them the reasons. If it is a flat, अगर आप कोई फ्लैट बेच रहे हैं, the customer, lot of customers have the same objection कि इसका cost ज़्यादा है. So before the customer raises it, you raise it yourself. Tell the customer, Mr. Customer, many people think that this flat or this property is expensive, and that is why they ignore this property. However, if they take a closer look at it, they would in fact find that it saves more money or whatever the benefit is, and that is because give them the reason how it is going to save them money. Raise the objection yourself. So when you जब आप कस्टमर को ये टेक्निक यूज करते हैं तो कस्टमर को समझ में आता है कि यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर कॉन्फिडेंट, एट द सेम टाइम इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग द रैपो विद द कस्टमर आल्सो। टेल द कस्टमर, सर कई सारे लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी का कॉस्ट ज्यादा है एंड वो इस प्रॉपर्टी को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब वो इसके बारे में एक और अच्छे से देखते हैं, when they take a closer look at it, उनको पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी लेने से उनका क्या फायदा होना है, या उनका एक्चुअली उनके बहुत पैसे सेव हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कई सारे कस्टमर्स को लगता है कि ये मॉडल एक्सपेंसिव है और ये वो मॉडल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब उनको मैं इसके बेनिफिट्स बताता हूँ और ये बताता हूँ कि किस तरीके से और पैसे सेव कर सकता है, वो यही कार लेते हैं। क्योंकि बिकॉज उनको रीजंस बताइए। Another way is, many people think this expansion is expensive. कई बार होता है कि घर में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, उसकी वजह से कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है, या कई बार लगता है कि कार में कुछ एडिशनल फीचर्स है, उसके लिए कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। कस्टमर्स को नहीं चाहिए रहता है। Many people think this expansion is expensive and so they ignore this add-on. Right? We want customers to buy more and more from us. Additional features, advanced version लेके जाए। If you're selling a car, you want the customer to buy the top end model. Many people think this version is expensive and so they ignore this version. However, when they take a closer look at it, they find the extra features this version gives in fact saves money, and that's because you tell them why, you tell them how.
ये मैंने आपको टेक्निक बताया है। अब आपको ये यूज करना है अपने सिचुएशन में। रेज द ऑब्जेक्शन योरसेल्फ, मतलब कस्टमर ऑब्जेक्शन रेज करें उसके पहले आप खुद ही करना है। कौन से ऑब्जेक्शंस? जो ऑब्जेक्शंस कॉमन होते हैं। कई कस्टमर्स इसको ये एक्सपेंसिव लगता है, कई बार कस्टमर सोचते हैं कि हम टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कई बार कस्टमर लगता है कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी और ये इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब उसको ये और अच्छे से समझते हैं, हम उनको समझाते हैं, तो उनको पता चलता है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी डिलीवरी भी टाइम पे हो जाएगी, या इसमें वो और पैसे सेव करेंगे। क्योंकि this is how you use this objection and technique. Raise the objection yourself. Another objection handling technique is ask a positive open question. Open question. Ask a positive open question. And this is a very powerful objection handling technique, friends. Two reasons. दो वजह है जिसकी वजह से ये बहुत पावरफुल है। पहला तो ये कन्वर्सेशन को राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। जब कस्टमर ऑब्जेक्शन रेज करता है so as a salesperson, it is my responsibility that I steer the conversation in the right direction. तो अगर आप इस टेक्निक को अच्छे से यूज करेंगे तो आपका कन्वर्सेशन राइट डायरेक्शन में जाएगा एंड कस्टमर विल फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड अपॉर्चुनिटीज, नॉट ऑन द प्रॉब्लम एंड नेगेटिविटी। एंड जब आप ये टेक्निक यूज करते हैं, व्हेन यू आस्क अ पॉजिटिव ओपन क्वेश्चन टू द कस्टमर, you make the customer think of ways to overcome the problem themselves. अगर आपने ये सही तरीके से यूज किया तो कस्टमर ही आपको रीजन दे देगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेक सेंस? एग्जाम्पल, कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट पे आई डोंट बिलीव इन दिस प्रोडक्ट, ये मुझे पसंद नहीं आया। व्हाट शुड आई डू टू मेक यू बिलीव इन दिस प्रोडक्ट? यूजुअली कस्टमर बताएगा कि भाई इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या होता कि वो ये बिलीव करते वो कॉन्सेप्ट को या लाइक करते उसको, मुझे ये पसंद नहीं आया। इसमें ऐसा क्या करूं सर, या प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करूं कि जो आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए? कस्टमर बोलता है कि भाई ये थोड़े पैसे ज्यादा लग रहे हैं, बजट से थोड़ा ऊपर हो रहा है। व्हाट वुड बी अ गुड रीजन टू पे अ लिटिल बिट मोर? कस्टमर बोलता है कि यार ये मेरे को नहीं लगता आप ये कर पाएंगे। आस्क कस्टमर, सर मैं ऐसा क्या करूं कि जो आपको कॉन्फिडेंस लगे कि हम ये कर सकते हैं आपके लिए। कस्टमर बताएगा कि उसको अश्योर फील करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अगर आप ये कर दोगे तो हो जाएगा। फिर आस्क अ पॉजिटिव ओपन क्वेश्चन। So I want all of you to think about this after the session is over. अपने ऑब्जेक्शंस लिखिए और इस ये टेक्निक्स को यूज कैसे करेंगे एक एक करके करते ये टेक्निक यूज करेंगे। Another objection handling technique is formulate a hypothesis. मान लो कि जो चीज नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। मान लो कि ये ऐसा है। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, मान लो कि अगर मैं ये कर दूं, मान लो कि ये हो गया। फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस मतलब कस्टमर ने बोला कि प्राइस ज्यादा है। सर मान लो कि मैं प्राइस मैच कर देता हूं तो क्या आप मेरा प्रोडक्ट ले लेंगे? फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। कई बार क्या होता है सेल्स में, यू नो
there are some situations which are not that easy to handle, or there are some objections which are not easy to overcome with. And प्राइस भी एक ऐसा ही सिचुएशन होता है, हमेशा प्राइस में आके गाड़ी अटक जाती है, कस्टमर की भी और सेल्स वाले की भी, या डिलीवरी पे आके अटक जाती है, या क्वालिटी पे आके अटक जाती है। और उस समय अगर हमने सही तरीके से हैंडल नहीं किया सिचुएशन को, तो ऑर्डर हमारे हाथ से जा सकता है। एंड इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिचुएशन को हैंडल करना। प्रॉब्लम हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, राइट डायरेक्शन में कैसे जाना है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है। कन्वर्सेशन रुकना नहीं चाहिए, कन्वर्सेशन चालू रहना चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। कस्टमर ने बोला कि प्राइस ज्यादा है, तो व्हाट डू, यू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। सपोज मान लीजिए कि प्राइस प्रॉब्लम नहीं रहेगा और मैं और मेरी टीम उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो क्या आप ये प्रोडक्ट हमसे ले लेंगे? आप ये प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे? सो इफ यू आर सेलिंग अ फ्लैट, मे बी, so suppose if we find a solution for the price, and that's not a problem, how are you going to use this property, or who is going to live with you in this flat or property? Formulate a hypothesis. ये मेरे ओवर बजट चले गया, मेरे बजट से ऊपर है। मान लीजिए कि ये मैं इसका सोल्यूशन निकाल लेता हूं और ओवर बजट जो है हम लोग उसका आपको सोल्यूशन दे देते हैं। आप ये प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे? क्या आपको लगता है ये हमारा प्रोडक्ट सोल्यूशन जो है आपके लिए राइट फिट है, या आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है? सो इफ यू आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी, माय फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, कस्टमर बोलते हैं ओवर बजट हो गया, प्राइस का मैटर तो सॉल्व करना है, लेकिन ये अभी हम क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, सो दैट एक पॉजिटिविटी मेंटेन रहे कन्वर्सेशन में। सो मान लीजिए कस्टमर आपको कहता है कि बस दिस ओवर बजट। सपोज इफ वी फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉपर्टी बीइंग ओवर बजट, डू यू फील दैट दिस प्रॉपर्टी इज द राइट वन फॉर यू? क्या ये प्रॉपर्टी आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करती है? क्या ये प्रॉपर्टी आपको और आपके फैमिली के सारे नीड्स पूरे करती है? हाँ करती है, और वही हमको सुनना है, वो हाँ सुनना है, यस सुनना है। यू वांट टू फाइंड आउट वेदर द कस्टमर इज रियली इन फॉर इट। क्या कस्टमर रेडी है, या और भी कोई ऑब्जेक्शंस हैं? तो हाइपोथेसिस बनाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि हम ये करते हैं, तो क्या आप हमारे लिए कर सकते हैं? मान लीजिए कि प्राइस इश्यू नहीं है, तो क्या ये प्रोडक्ट आपके राइट फिट है? फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। Another technique is refer to similar situations. And this is a very classic way of handling objections. हम लोग काफी टाइम से, सेल्स के लोग काफी टाइम से ये टेक्निक यूज करते आए हैं, रेफरिंग टू सिमिलर सिचुएशंस। मतलब अगर आपने सेम प्रॉब्लम को किसी और कस्टमर को ने जो सेम अगर किसी और कस्टमर ने सेम प्रॉब्लम फेस किया था, आपने उसको सॉल्व किया है, तो आपको ये कस्टमर जिससे आप बात करें उसको भी बताना है कि किस तरीके से आपने दूसरे कस्टमर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया है। हाउ यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बाय रेफरिंग टू सिमिलर सिचुएशंस।
The same problem was raised by Mr. X from Y company. Yes, the same problem was raised by Mr. XYZ. And we could spread the investment over 2 years and that solve the problem. Would that help you as well? If you are selling a property, for example, कस्टमर ये बहुत ज्यादा है प्राइस आपका, सर हमारे कई कुछ और कस्टमर्स को इसका प्राइस ज्यादा लगा था, और या फिर आप किसी कस्टमर का नाम जैसे मिस्टर रमेश को भी इसका प्राइस ज्यादा लगा था प्रॉपर्टी का, और हमने उनको पूरा 90% प्रॉपर्टी के रेट पे लोन दिला दिया और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो क्या ये आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है? हाँ हाँ बिल्कुल, 90% मिल जाएगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? दिस इज हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन, रेफर टू सिमिलर सिचुएशंस। Sometimes customers think that it is too complex solution. Tell them हमारे कुछ और कस्टमर्स भी थे जिनके साथ हमने रिसेंटली काम किया, उनको भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगा था, उन्होंने भी ये सेम प्रॉब्लम फेस किया था, लेकिन जब वो हमारे साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, हमने उनको समझाया ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद उनको लगा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से इंस्टॉल भी हो जाएगा, और अभी हमने उनका इंस्टॉलेशन भी कर दिया या हमने उनका डिलीवरी भी कर दिया। So does this solve your problem also? Refer to similar situations. अपने customers, जो भी कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, if they have a problem and if you have solved the same problem for any other customer, share those instances, share those solutions with your customers. Another objection handling technique is rephrase the objection in a positive way. ये एक बहुत पावरफुल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक है दोस्तों। रिफ्रेज द ऑब्जेक्शन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। दो चीजें होती हैं अगर आपने इसको सही तरीके से यूज किया है तो। एक तो कस्टमर प्रॉब्लम को भूल जाएगा और सोल्यूशन में ध्यान देगा। सेकंड, if you use this technique correctly, the customer will give you a yes, and you will also be able to convince the customer, and that is what we want to do. We want to convince the customer. So अगर आप ये टेक्निक को मास्टर कर लेते हैं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं आपने अभी सीखा और मास्टर हो जाएंगे। So you have to understand right now how to use it, and then deliberately take out time and practice it. इस टेक्निक को यूज करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। So you start saying something like, so if you understand, so if I understand you clearly, or in other words, so 3 स्टेप्स हैं इस टेक्निक को यूज करने के लिए। You say something like, so in other words, or you say something, so if I understand you clearly. Step 1. Step 2, इसके बाद आप रिफ्रेश करते हैं कस्टमर का ऑब्जेक्शन को, लेकिन उसमें से नेगेटिविटी हटा देते हैं और पॉजिटिव अपोजिट कर देते हैं। यू रिप्लेस इट विद द पॉजिटिव अपोजिट। We need to discuss the advantages that are specifically important for your situation, or the slightly higher price should be justified by additional benefits. And at the last, you ask a confirmation question, which results in your customer agreeing to you. Is that correct? Is that correct? So 3 steps. So if I understand you clearly, the slightly higher prices should be justified by additional benefits. Is that correct? Yes. मान लीजिए कि कस्टमर ने बोला कि आपका प्राइस ज्यादा है, योर प्राइस इज हायर, स्लाइटली हायर, थोड़ा ज्यादा है। So you tell the customer, so if I understand you clearly, अगर मैं आपको समझता हूं क्लियरली, जो एडिशनल जो प्राइस आपको लग रहा है, so we have to justify by additional benefits.
हायर प्राइस तो हमको एडिशनल बेनिफिट जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्या मैं सही हूँ? यस। कस्टमर ने आपको बोला कि आई डोंट सी एनी एडवांटेजेस इन दिस, मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं नजर आ रहा है। आपके कस्टमर को फ्लैट दिखा दिया, घर दिखा दिया, सोल्यूशन दे दिया, सॉफ्टवेयर बता दिया, लेकिन कस्टमर बोलता है मुझे इसमें कुछ बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है, आई डोंट सी एनी बेनिफिट्स। अभी क्या करना है? You tell the customer, so if I understand you clearly, or in other words, हमें उन पॉइंट्स पे डिस्कस करना पड़ेगा या उन एडवांटेजेस पे डिस्कस करना पड़ेगा जो आपको चाहिए, राइट? यस। So if I understand you clearly, only with very good reasons allocations of budget would be an option. अगर कस्टमर ने बोला कि बजट नहीं है तो क्या करना है? So if I understand you correctly, you would only want to work with us if we can do it faster than your current supplier. Is that correct? मतलब दो अलग अलग कार की एजेंसी से एक बोलती है मैं 2 हफ्ते में डिलीवर कर दूंगा, दूसरा बोलता है मैं 4 हफ्ते में कर दूंगा, दोनों को बीच में लड़ाई चल रही है, राइट? तो कस्टमर गया, बोला भाई वो तो 2 हफ्ते में कर दे रहा है, मैं इसलिए आपके पास से लूंगा। तो व्हाट यू डू? यू टेल देम, टेल द कस्टमर, सो अगर मैं आपको सही समझता हूं तो आप मेरे से कार तभी लेंगे जब मैं आपको 2 हफ्ते के अंदर कार डिलीवर कर दूं। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? यस। ओके, दैट इज व्हाट यू वांटेड टू हियर। नाउ यू नीड टू डू एवरीथिंग इफ पॉसिबल टू डिलीवर दैट कार विद इन 2 weeks, बट यू हैव द ऑर्डर विथ यू। रिफ्रेश द ऑब्जेक्शन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो अभी हमने अलग अलग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक सीखी है। What you guys need to do is practice them. Now let us see some advanced closing techniques also before we finish the session. Procrastinations. Many times सेल्स में कई बार क्या होता है, हमने कस्टमर को सब समझा दिया, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया, प्राइस बता दिया, बट कस्टमर सेज आई विल थिंक दिस ओवर, मैं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। या कस्टमर बोलता है कि मैं मेरे पार्टनर से डिस्कस करके बताऊंगा, या मेरे फैमिली के डिस्कस करके बताऊंगा, या मुझे ये किसी और के साथ कंपेयर करना है, या कस्टमर बोलते हैं कि आपका ये बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। और ये कब होता है? लास्ट में होता है। एंड व्हाट वी डू, सेल्स पर्सन क्या करता है मोस्टली? ठीक है सर, मैं आपको फिर से कॉल करता हूँ, आई विल कॉल यू बैक। यूजुअली व्हेन व्हाट हैपेंस इज सेम। सो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ही वो है कि कस्टमर इज ट्राइंग टू प्रोलॉन्ग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जितना करीब आप जाते हैं ऑर्डर के, उतना कस्टमर उसको लंबाते जाता है। आई वांट टू थिंक दिस ओवर, मुझे और सोचने के लिए टाइम चाहिए, मुझे किसी और के साथ डिस्कस करना है, आई वांट टू कंपेयर दिस विद अदर कोटेशंस, विद अदर प्रोडक्ट्स, विद अदर डीलर्स, अदर ऑप्शंस, एंड दिस इज टू एक्सपेंसिव। And many times what we do as a salesperson is we tell the customer, okay sir, I'll call you back. And when we say the customer, I will call you back, that means you as a salesperson are not controlling it. You're not in control of the situation or the conversation. Customer is controlling it. And if it is out of your control, you don't know what is going to happen next. क्योंकि उन थोड़े दिनों में अगर कस्टमर ने बोला मैं सोच के बताता हूं, और जब तक वो सोच रहा था कोई और वेंडर गया, उसने उसको बेच भी दिया। कस्टमर ने बोला मैं किसी और से डिस्कस करता हूँ, वो डिस्कस करने गया, वहां पे कोई और आके बेच दिया। कस्टमर ने कंपैरिजन किया, वो कोई और आके उसको बेच के चले गया, राइट? यू नीड टू बी इन कंट्रोल। एंड इसके लिए क्या करना है, दैट इज व्हाट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूँ, और उस फॉर्मूला दिखाने के बाद मैं कुछ आपको इनको यूज कैसे करना है वो भी सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कस्टमर ने जो एक्सक्यूज है उस एक्सक्यूज को हटाना है, उस रीजन को हटा देना है। कैसे हटाना है? एक हाइपोथेसिस यूज करके। द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज
Get rid of the excuse of the customer, the reason of the customer why he cannot do business with us. By formulating a hypothesis, suppose that मान लो के followed by a closed question. अगर कस्टमर यस बोलता है तो आप कस्टमर को पूछ सकते हैं, सर आपको ये क्यों पसंद है, आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हैं. लेट द कस्टमर एक्सप्लेन यू व्हाई ही वांट्स टू वर्क विद यू, विद योर प्रोडक्ट, विद योर कंपनी, व्हाई ही लाइक्स यू. And then you would make a very clever statement which gets you closer to your deal. If the customer says no, कस्टमर ने ना बोल दिया कि भाई नहीं, इस फिर भी आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ है. मैं आपको ये पूरा अभी एग्जांपल्स दिखा के समझाता हूँ, फिर हम लोग ये स्क्रीन पे वापस आएंगे. सपोज कस्टमर बोलता है आई वांट टू डिस्कस दिस विथ, कस्टमर सेज भी मुझे मेरे फैमिली के साथ डिस्कस करना है. आपने सब कुछ बता दिया कस्टमर को, आपको लगता है कस्टमर कन्विंस, चेक दे देगा, अभी पीओ दे देगा, और उसी टाइम कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे ये डिस्कस करना पड़ेगा मेरे पार्टनर के साथ, मेरे फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ या मेरे रिलेटिव्स के साथ, अभी क्या करना है. इस सिचुएशन में अटक जाते हैं. अच्छा ठीक है सर, मैं आपको कॉल बैक करूंगा. यूजुअली कस्टमर ऐसा अगर बोले तो सेल्स पर्सन ऐसे ही रिएक्ट करता है, बट वो नहीं करना है. व्हाट यू नीड टू डू इज क्रिएट अ हाइपोथेसिस. बस वेरी सिंपल रिएक्शन, शो एम्पैथी. आई वांट टू डिस्कस दिस विद, ओके, आप क्या करने वाले हैं, दिस इज व्हाट हाउ यू रिएक्ट. आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझ सकता हूं. एंड देन यू क्रिएट अ हाइपोथेसिस. इफ यू कुड डिसाइड योरसेल्फ, अगर आपको ही डिसीजन लेना होता तो क्या आप ये कर लेते, क्या आप ये ले लेते. कस्टमर ने बोला मुझे ये डिस्कस करना पड़ेगा फैमिली के साथ. नाउ if you're selling a flat, you need to make sure that this person is convinced. If you're selling a property or a car, कोई एक या दो लोग आए बाद में वो बोलते कि मुझे हमें हमारी फैमिली के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, या कोई अगर आपका B2B प्रोडक्ट है तो they may want to discuss with other team members or other partners, but you need to make sure that this person with whom you're talking with is convinced. I want to discuss this with, and you say मैं समझ सकता हूँ, I understand you sir, I understand that. मान लीजिए कि suppose that if you had to decide yourself, अगर आपको इसका डिसीजन लेना पड़ता तो क्या आप ये ले लेते. दो चीज हो सकती है, कस्टमर बोलेगा यस या नो. अगर यस बोला तो आपको फिर कस्टमर को पूछना है. अगर कस्टमर यस बोलता है, दैट्स रियली नाइस टू हियर, व्हाई इज दैट. अगर कस्टमर ने यस बोला, हाँ अगर मैं तो ये ले लूं, तो आप कस्टमर पूछो सर, यू टेल हिम अरे गुड टू हियर दैट, सुन के अच्छा लगा सर कि आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया, ये कार पसंद आई, फ्लैट पसंद आया, सॉफ्टवेयर पसंद आया, आपको इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा, व्हाई डू यू लाइक दिस. उसमें क्या होगा, कस्टमर आपको बताएगा कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं. एक बार कस्टमर ने आपको बता दिया तो देन यू मेक अ वेरी क्लेवर स्टेटमेंट to make some progress or close the deal. This clever statement can also be a closing technique. अगर कस्टमर ने नो बोल दिया, यहाँ पे कस्टमर ने बोला कि मुझे ये डिस्कस करना पड़ेगा, और आपने पूछा सर अगर आपको ये करना होता कि आप कर लेते, बोलता नहीं, तो वो डिस्कस भी करता किसी और के साथ तो भी वैसे भी नहीं लेने वाला था. बट एटलीस्ट अभी आपको पता चल गया कि ये कन्विंस नहीं है, और आप कस्टमर के साथ बात भी कर रहे हैं, तो आप कस्टमर को पूछ सकते हैं सर आपको ये लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ जाए, कि आप ले लें, क्या चेंज करना पड़ेगा, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, राइट. कस्टमर सेज दिस इज अनदर सिचुएशन, आई वॉन्ट टू थिंक इट ओवर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं सोच के बताता हूं. दिस इज वॉट यू से, आई फुली अंडरस्टैंड दैट सर, मैं आपको समझता हूं. सपोज दैट यू हैड टू डिसाइड इट नाउ, अगर आपको अभी डिसाइड करना होता तो क्या आप करते, वुड यू डू इट.
अगेन टू ऑप्शंस फॉर द कस्टमर, yes or no. कस्टमर yes बोलता है, you again tell her, "Oh, that's nice to hear, sir. What do you like the most about our product? Or how do you think this is going to help you solve your problem?" कस्टमर अपने यूएसपीज बताएगा, आपके प्रोडक्ट की यूएसपीज कस्टमर बताएगा। एंड अगर ये डिसीजन मेकर है तो आप उसको पूछ सकते हैं, सर अगर आपको ये पसंद ही है तो आप और इसके बारे में और क्यों सोचना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं। अगर कस्टमर ने नो बोला यहाँ पे, तो वो सोचने के बाद भी नहीं लेने वाला था। तो आपको यहाँ पता चल गया कि भाई कस्टमर कन्विंस नहीं है, और आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, तो यू आस्क हिम, सर हमें और क्या करना चाहिए था कि जिसकी वजह से आपको ये सोल्यूशन पसंद आ जाए, व्हाट चेंजेस डू यू वांट इन आवर प्रोडक्ट, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन आवर प्रोडक्ट, व्हाट इज द राइट सोल्यूशन फॉर यू, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर सेज आई वांट टू कंपेयर दिस विथ, ऑब्वियसली ये होता ही है, कंपैरिजन तो हर केस में होता है। कस्टमर होता है, आई वांट टू कंपेयर दिस विथ। सबसे पहले आपको क्या करना है कंपैरिजन के टाइम में, यू नो you need to make sure or assume that find out what are the criteria of comparison सबसे पहले। तो कस्टमर को आपको पूछना है, सर व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया दैट यू वांट टू कंपेयर, आप किस पैरामीटर्स पे इसके कंपेयर कर रहे हैं। देयर वुड बी सम की पैरामीटर्स, राइट, क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी टाइम, मोस्टली ये तीन ही होता है। कस्टमर को पूछो सर आपके क्या क्राइटेरियाज हैं, और जब कस्टमर को क्राइटेरियाज बताता है, देन यू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस एंड अज्यूम दैट द पैरामीटर्स आर सेम, इक्वल। दैट मींस कस्टमर ने बोला आपको, आई वांट टू कंपेयर दिस विद अदर वेंडर, सो व्हाट आर द मेन क्राइटेरियाज दैट यू वांट टू कंपेयर दिस, यू नो प्राइस इज इंपॉर्टेंट, मैं प्राइस देखना चाहता हूं कि क्या प्राइजेस हैं। सो आप यहां पे क्या करेंगे, अब आप वही सेम टेक्निक यूज करें। सपोज price is exactly the same, suppose quality is exactly the same, suppose delivery time is exactly the same, would you want to work with me? अगर आपका कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आया है, सोल्यूशन पसंद आया है, तो वो यस बोलेगा। अगर वो यस बोलता है तो फिर आप क्या करेंगे, वाओ ग्रेट, गुड टू हियर दैट, नाइस टू हियर दैट, एंड व्हाई डू यू थिंक सो, ये आपको कैसे हेल्प करेगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू सी of using our product. Let the customer explain why he likes, what he likes about your product. एंड अगर कस्टमर ने नो बोला यहाँ पे, तो इसका मतलब कंपैरिजन के बाद भी वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेने वाला था। एंड दैट इज गुड दैट यू नो कि कुछ प्रॉब्लम है, एंड सिंस यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द कस्टमर, आस्क द कस्टमर अगेन, सर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप हमारे प्रोडक्ट ले लेंगे। अनदर चीज जो ऑब्जेक्शन आता है कई बार, ये लास्ट में कस्टमर बोलता है आपका प्राइस ज्यादा है, योर प्राइसेस आर मच हायर देन द कंपटीशन, एंड दिस इज अ प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी डिस्काउंट कई बार देना पड़ता है हमको, लेकिन यू नो वी ट्राई टू फाइंड आउट वेदर प्राइस इज द ओनली थिंग दैट इज यू नो स्टॉपिंग यू टू डील, यू टू डू बिजनेस विद द कस्टमर। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि प्राइस ही प्रॉब्लम है या कुछ और भी प्रॉब्लम है। सो डायरेक्ट नेगोशिएशन पे नहीं आ जाना, डायरेक्ट डिस्काउंट पे नहीं आ जाना है, पहले तो पता करना है कि प्राइस ही प्रॉब्लम है या और भी कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कई बार कस्टमर ने बोला प्राइस ज्यादा है, हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं, और डिस्काउंट कर दिया तो उसके बाद बोलेगा अब मैं इसको कंपेयर करूंगा दूसरों के साथ, तो प्रॉब्लम में आ गए। पहले हम लोग दूसरे प्रॉब्लम पता करते हैं, और अगर प्राइस में डिस्काउंट देना पड़े तो लास्ट में करेंगे, पहले नहीं। तो फर्स्ट ask the customer, besides the price, are you happy with the product performance? Besides the price, sir, do you think this, you know, अगर कोई कस्टमर ने गाड़ी ली, एक टेस्ट ड्राइव लिया होगा, परफॉर्मेंस पता होगा, आर यू हैप्पी विद दैट, आर यू हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स, यस।
यस बोला तो नाइस टू हियर, व्हाई इज दैट सर, क्यों आपको ये हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है, लेट दी कस्टमर एक्सप्लेन क्यों पसंद आता है, then you say something like this, well it seems that you prefer to continue working with us, don't you? Of course yes. And then you make a closing attempt. Customer no bolta hai, then again it's good that you come to know that customer is not happy not only with the price, there's something else also. Ask the customer what is needed to satisfy your needs apart from the price, and then work on it. These are advanced closing techniques, my friends. आप लोग को क्लोजिंग टेक्निक्स भी सीखनी चाहिए. यू शुड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न. बट आज के सेशन में इतना ही हमने कवर किया है. सो नाउ आई जस्ट रिफ्रेश व्हाट वी डिड. वी डिड रिफ्रेशर ऑफ सेशन 1, phone professionalism, elevator pitch, structure of sales conversation, and then today we did various kinds of resistance, common reactions to resistance, objection handling, and advanced closing techniques. Okay, so I am open for questions. I hope this was a very meaningful session for you. आप लोग अपने suggestions, feedback chat box में लिख सकते हैं. Well, Aditya has asked if you're not able to match price gap. So, Aditya, there are a lot of techniques which are there which we can use, negotiation techniques. So that we may cover in the next session, Aditya. सेल्स और मार्केटिंग तो अलग-अलग कैसे ये मेरे ख्याल से कर सकते हैं कि हाँ, वो सिंपल भी रख सकते हैं बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग से भी आपका लीड जनरेट हो रहा है एंड कुड बी वन थिंग, है ना? शायद मैं सोचा था कुछ ऐसे रख सकते हैं एक्विजिशन स्ट्रेटजी या समथिंग लाइक दैट. हाँ, मतलब तो कस्टमर एक्विजिशन हो जाएगा. मैंने सही कर रखे थे. Okay, so Monile Verma, I did not understand your question. So if you can unmute yourself and ask your question. हेलो. Yes. मैं मोनाल वर्मा बोल रहा हूँ बीके डिस्ट्रीब्यूटर लखनऊ से. जी बोलिए. सर जो कंप्लेन दी जाती है तो न्यू कंप्लेन के साथ में ओल्ड कंप्लेन के भी कस्टमर आते हैं, उनको भी कॉलिंग करनी पड़ती है और ये एक बार नहीं कई बार आया है. इसका कुछ सोल्यूशन है सर? न्यू कस्टमर भी होते हैं, ओल्ड कस्टमर भी होते हैं, उनके कंप्लेन रिपीट होते हैं. मतलब कंप्लेन नहीं, मतलब कॉलिंग अगर जैसे दिया कंप्लेन आज 10 कस्टमर को कॉल करनी है तो वो 10 कस्टमर के साथ पुरानी जो कंप्लेन लगी थी उसके भी कस्टमर आते हैं. फिर आप एग्जांपल दीजिए मुझे कोई. जैसे आज मैंने किसी को जगन्नाथ को सपोर्ट दैट कॉल किया आज ने एक न्यू कंप्लेन में, ठीक है. कल मैंने प्रदीप को कॉल की थी तो वो जगन्नाथ को आज जैसे दिया है प्रदीप का भी कॉल हमको करनी पड़ेगी सर. उसमें कंप्लेन में वो ऑटोमेटिक आती है ओल्ड कॉल. अच्छा, ये I think Arpit, this is a technical problem with regards to your software. I think you will have to take it separately. जी, जैसे अगर 2-3 कंप्लेन होगी तो हमको 40-50 कॉल करनी पड़ती है फिर तभी जाके वो क्लोज होता है एप्लीकेशन. तो वर्मा जी ये आपको अलग से फोन करके इसको सॉल्यूशन दे देंगे आपको, ठीक है? जी 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 जी, थैंक यू वर्मा जी. ओके सर. Okay friends, I am still waiting for your questions. अगर आप लोग को कुछ questions पूछ रहे हैं तो you can type the questions in the chat box. We still have some 5-10 minutes. Or you can also type your feedback in the chat box. आप लोग अपना feedback भी chat box में लिख सकते हैं और question है तो question भी chat box में लिख सकते हैं. Has anybody any now questions?
or we will end the session here. Thank you, Jeet, so much for your time. Thank you everyone for participating. Any other questions? कुछ और पूछना है जीत से? Thank you.